Hello everyone, welcome. As you all know, being a freelancer, we like look after many roles. We are the marketing team of our company. We are the sales team of company. We do like everything. But I think like taxation and the GST are a few of the topics which we really lack knowledge about, and we are like kind of scared about doing these like things because we have very little knowledge and there is very little genuine information over the internet to look for. So that's the reason we decided to bring a qualified person to like share his thoughts and give us knowledge and answer our questions to all of us. So please welcome here like Mr. CA, Mr. Rajat Agarwal. So he's practicing CA in Chhattisgarh in the field of audit, income tax, and GST with the firm name Agarwal Rajat and Co. And he's also a faculty of information system audit, and he has mentored like thousands of CA members through the video lectures, and he has his own YouTube channel through where he shares his knowledge and guides people. So welcome, sir. Thank you so much, Omkar. It's my privilege to be here with that sharing the screen with so freelancers, and it is a very different experience for me because like I have first time visited this panel, and I am currently feeling like I am a coder or something apart from the world of the taxation in a different world, like a metaverse or something. So maybe in near future I have to wear the VR glasses to teach you all. Yeah, that can be a very near future and a very possible scenario. Yeah, Omkar. So, guys, firstly, sir gonna present like few of his thoughts and slides, like that how tax system works, and then after that we will be opening the house to all the questions and answer, and it can be an interactive session after that. So, please take over. Yeah, thank you, Omkar. So basically, we are here for discussing the. Let me just come to the stage first. Yeah, now I'm getting comfortable with the system. So basically, these are what I just gathered some of the freelancing websites from the internet. So I found this kind of things which you might be using, and most of all you are using the Webflow, I know, but still apart from that you might be using this kind of websites like Envato Market and all. So these websites are like you're performing services over to this website. So basically you have to deal with two of the laws of India regarding the taxation part, that is the GST and income tax. So these two basic taxation part is there which will be governing you in all the aspects of your this career of freelancing. So basically, if you get any of the income from all these schemes, so first of all, the most important ingredient is your turnover. So basically, with the help of turnover only, everything is decided. So turnover means how much you are earning in total. Like from a particular Fiverr website, you are earning 10 lakhs. From Webflow website, you are earning 25 lakhs. So if we combine all of these earnings, that will combinedly called as a turnover. So that turnover is very much important, like in GST also and in income tax also. So briefly, let me update you about the budget. Like this budget is like if the budget is announced on this February of 2022, that means they are talking about the taxation of 2023 to 2024. Like if they are discussing in February 2023, just now the budget ended and it ended in February 2023. That means the name is budget. That means they are discussing in advance for the next year. So basically, what all provisions are being discussed in the budget, what all you have heard in different YouTube videos or in the speech in the news, they are talking about the next year taxation part. So basically, you don't have to worry about that in the current year return. So what else you are know about the current year return, that will be same. The thing which are discussed will be applicable next year. That when you file the returns for 2024, at the year 2024 in July is the due date for income tax return. So at that time, this budget changes will be applicable, and at that time, it will be beneficial for you. But the thing is, we make budget so that we can plan things accordingly for whole of our year. So for that purpose, this budget is conveyed in advance so that you can prepare yourself in advance for the next year. So this is the main crux of the budget, why budget is announced and what all things are covered in the budget. Now let's see what are the changes in your taxation part in this budget. So basically, you have to worry about the two changes only. Rest all you can keep it apart. Just two, we can focus on the two changes. First changes is taxation slab rate. So if your income is above 7 lakh, like if your total income is above 7 lakh, then there was one provision that up to 7 lakh there is no tax. There is no such thing for you, because if your income is above 7 lakh, you will not be getting that rebate of that exemption. Like up to first 7 lakh the income is exempt. It is not the case. They are teaching wrong in the social media and in the news, because it is for them whose total income is below 7 lakh, not for those whose income is more than 7 lakh. For those, no deductions will be allowed, no extra rebate is provided. The first thing, I have cleared this first point. And the second point is your slab rates gonna change.
Like slab rates are some things in which the income tax decide, like 0 to 2.5 lakh there will be no tax, 2.5 to 5 lakh there will be 5% tax. So in this way they have divided the taxation slab. So basically there are two kind of taxation slabs right now. So right now these two slabs are working, but one is the old scheme and another is the new scheme. So there are some pros and cons for opting these schemes. Basically right now government is focusing on the new scheme in which no deductions are allowed, like no use of investment in LIC, home loan, and no deductions will be provided afterwards. So if you opt for that scheme, that is the new scheme. And the old scheme is that in which you will get all the benefits of LIC deductions, PPF deductions, and all the deductions part are there. And so that deductions part are covered in old scheme. So in this budget, what they have done is they have changed the bracket of new scheme. They have done nothing on the old schemes. So basically what all people were following were the old scheme, not the new scheme. So for old scheme, there are no such changes. Only changes are provided in the new scheme. So this is the basically difference which have came up in this budget part. So this is the fabric part. Yeah, Raja sir, I want to ask a question here. Yeah. क्या है? एक मिनट साउंड रिपीट हो रही है. Yeah, check. ये क्यों हो रहा है? आप एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं. हाँ. मे बी उसके कारण हो रही है. या आप अपनी माइक को म्यूट कर लो. हाँ आप अपना माइक म्यूट करो तो सही जाएगा. ओके यू कैन स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम, है ना. माय क्वेश्चन इज जो दो सिस्टम है, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम, हम लोग उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं क्या कि हमको ओल्ड में फाइल करना है या न्यू में फाइल करना है? जो नए लोग हैं फाइल करना है उनके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि हम लोग को ऑप्शन मिलता है क्या कि हम लोग नए रिजीम को सेलेक्ट करें या ओल्ड रिजीम को सेलेक्ट करें, है ना. जो ओल्ड सिस्टम है. आपका माइक म्यूट पे है तो आप उसको म्यूट से हटा सकते हो. हाँ. Yeah, Harshit, got your point. Yeah, this is a very nice question because like this is some restrictions they are putting. So what you can do is you can choose for the old scheme versus new scheme only one time as a lifetime. Okay. So if you decide to go for the new scheme, you have to go for the new scheme for the whole life. Okay. So you have no option to switching on yearly basis. Like in this year my tax is coming lower in new tax, so I will opt for new, and next year my tax is coming lower in old tax, so I will opt for old. This is not the case. You have to select only one time only, and whenever you switch, like right now the default scheme is old, so basically all were following the old scheme, and you have to opt for the new scheme. So if you opt for the new scheme, then you have to follow the new scheme itself. ओके ठीक है. और ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो आज तक टैक्स नहीं पे किया है, मतलब वो फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं टू पे द टैक्स. हाँ, उनके लिए भी अगर वो फर्स्ट टाइम भी एंट्री कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम में ही उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं हमें न्यू स्कीम में जाना है, तो फिर उनको न्यू स्कीम में ही रहना पड़ेगा. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बिजनेस, आप लोग का जो फ्रीलांसिंग है वो बिजनेस में कंसिडर हो जाता है, तो इसीलिए उसमें चॉइस नहीं मिलती है. अगर सैलरी होता तो सैलरी में हर साल चॉइस रहती है कि जिसमें भी कम इनकम आए, अगर मेरी ओल्ड में कम आएगी तो मैं ओल्ड ऑप्ट करूंगा, न्यू में कम आएगी तो न्यू ऑप्ट करूंगा. ये क्या है कि मैं अभी फ्रीलांसिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैं सारी चीज उसको हटाते जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोविजंस है. अगर हम सारा कुछ देखते जाएंगे तो बहुत बड़ा वास्ट कवरेज है. अराउंड 30,000 इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रोविजंस है. तो वो क्या है कि मैं उसको सारे को साइड करते करते सिर्फ जो फ्रीलांसिंग है वहां पे फोकस करते जा रहा हूँ. तो फ्रीलांसिंग में अभी फिलहाल ये है कि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं इसीलिए आपके पास चॉइस सिर्फ एक बार है ऑप्ट करने की. और जो बजट आया था उसमें जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ नए में आए हैं, ओल्ड में कोई चेंजेस नहीं. ओल्ड स्कीम जो थी वो एज इट इज सेम. ओके थैंक यू. Just one question. So I think I might be wrong, but one loophole around this might be कि let's say Harshit, उसका एक एजेंसी है FlowChef, और let's say he also registers as an individual हर्षित अग्रवाल एंड कंपनी सेपरेट और एक लीगल एंटिटी, और वो एक लीगल एंटिटी को हर्षित अग्रवाल एंड कंपनी को ओल्ड में रख दे एंड देन FlowChef को न्यू टैक्स रेजिम में रख दे, एंड ही कैन आस्क द क्लाइंट टू पे इन द बैंक अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लीगल एंटिटी depending upon which one he wants to go for. Yeah, that is possible. That is the case of like tax management. So like tax planning we can say. For that purpose you can do that, but for that you have to register a separate company. Like if you are a sole proprietor, you have one PAN card. So if you open 4 or 5 business with different name, still your PAN card is going to be same. So that PAN card is same. That's why all the business will be counted as one only. Even if you change other names also, then also it will be counted as one business only. So the choice will not be there of old and new. Old and new choice will be there for individuals and HUF only. And if you register as a company, then also you don't have choice because their taxation structure is different. Altogether, their charges are direct 30%. So in company format, direct 30% is charged. In partnership format, direct 30% charge. So there is a different case. So right now, like we can discuss about the individual case. Like in individual only, like the tax structure is changed and nothing has changed on the old scheme. So the first provisions was this only, and if you go over the budget and see, the buzz around the market is around this only, the tax structure only, that they have changed the slab rate. But in fact, they have not changed any slab rate on the old part.
Okay. Because like many people are using old only because their benefits are more. Like if you take a home loan, then also you get the benefit. If you take some insurance policy, medical policy, then also you can take the benefit there. So in all this scenario, the old scheme is better for now. And afterwards, like in next budget or so, at 2-3 years, they will be shifting their focus to the new one. The government will be shifting to that. So basically, what we have to consider is like we have to like see in which tax is coming lower for our assessment, and we have to decide accordingly. Okay. Nice. Okay. Thank you. Yeah, we can continue the presentation. Yeah, please feel free to share your screen और हम लोग presentation continue कर सकते हैं, है ना? या तो बेसिकली ये एक प्रोविजन हो गया जिसमें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं पहले क्लियर कर दिया कि भाई स्लैब रेट में कोई चेंजेस नहीं है, स्लैब रेट नए वाले में चेंज आया है। अब चलते हैं सेकंड, जो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है बिजनेस फ्रीलांसिंग बिजनेस में, वो ये रहता है स्क्रीन शेयर करना चालू कर दीजिए, वो भी बंद है। हाँ सॉरी या 1 सेकंड। ओके थैंक यू। Yeah. So basically, like when we go for the freelancing, so आपको बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले तो अपना टर्नओवर कैलकुलेट करना है। अब टर्नओवर के बाद आप अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकते हैं। जितने भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो आप माइनस कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो फाइनल अमाउंट आ रहा है, अब वो डिसाइड करेगा कि आप कौन सी स्कीम में जाएंगे। तो आपके पास क्या रहता है कि ऑप्शन, कि अगर आपका जो इनकम है, आपके पास एक ऑप्शन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नाम से दिया जाता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि आपकी अगर रिसिप्ट जो है वो 50 लाख तक है, अगर 50 लाख तक का अगर आपका कोई ये सारे प्लेटफॉर्म से पैसा आ रहा है 50 लाख, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका 50% मतलब 25 लाख इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इनकम टैक्स ये बोलता है कि आपसे कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस ये कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करते होंगे। आप मतलब आपके पास कोई बुक्स मेंटेन नहीं है कि मेरा खर्चा काय में हो रहा है, बस मैंने डायरेक्टली इनकम टैक्स वालों को बोल दिया कि भाई मेरा 25% खर्चा हो गया, 50% खर्चा हो गया, बचा 50% मेरी इनकम है। तो सपोज आपको सारे प्लेटफॉर्म से 50 लाख रुपीस मिला, तो इनकम टैक्स के हिसाब से उसके लिए आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ। मतलब इनकम टैक्स वाले फिर मानेंगे कि आपकी 25 लाख ही इनकम है, बाकी सब आपने खर्च कर दिया, मतलब वो एक्सपेंस हो गया। तो उस 25 लाख पे ही वो स्लैब रेट जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये स्लैब रेट के में पैसा फिर आपको टैक्स निकालते हैं। अब जैसे अगर आपकी मान लो आपकी टोटल में अभी ये मान के चलता हूँ कि आपकी रिसिप्ट 50 लाख है, तो आप 50 लाख है तो आपकी इनकम हो गई 25 लाख। अब 25 लाख पे कितना टैक्स आएगा, देखिए पहले 2.5 लाख पे ओल्ड के हिसाब से चलते हैं हम, ओल्ड के हिसाब से पहले 2.5 पे 0 कोई टैक्स नहीं आया, फिर 2.5 से 5 लाख के बीच में 5%, ये सरचार्ज जोड़ के 5.2% हो जाता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चलता है हर एक ब्रैकेट में, स्लैब में इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फिर 5 से लेकर 10 तक 20%, फिर 10 से लेकर 15 तक 30%, ये सरचार्ज जोड़ने के बाद 0.8 और 1.2 ये ऐड होते जाते हैं। इस तरीके से ये स्लैब बढ़ते जाते हैं। तो नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम एक्सेल में अगर करते हैं तो इफ का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे, लास्ट में होता ये है। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे नए स्कीम में आपको कितना टैक्स लगेगा आप वो फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं कि आपको कितना टैक्स आ रहा है, और आपका जो टोटल अमाउंट है आप कंपेयर करके आप देख लीजिए, जिसमें भी कम आ रहा है आपका टैक्स आप वो स्कीम ऑप्ट कर लीजिए। न्यू स्कीम में कम आ रहा है तो न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम में तो ओल्ड स्कीम। अब यहाँ तक कि किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो मैंने अभी आपको समझाया 50 लाख तक का, तो वो उसमें अगर कुछ डाउट हो किसी को, तो फिर मैं इसमें बजट में क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। Okay, Niranjan want to ask some questions. Please go ahead, Niranjan. Please go ahead. Hi Niranjan. Rajat sir, you can stop sharing your screen. Maybe your आवाज रिपीट हो रही है। म्यूट नहीं, या म्यूट करके हो सकता है। ओह अच्छा ओके। तो मुझे ये डाउट था कि लेट्स से आई ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो उसमें should I be maintaining the books even if my expenses aren't 50% of my total revenue? Okay, so this is the I was knowing that this question will be the biggest question in the freelancers community, because most of the freelancers are not withdrawing any cash from the bank account. So basically they are maintaining their books of accounts in the bank itself. Look, the case is the income tax department, the government is saying if you don't maintain any books of account, then you can opt for the presumptive taxation. But what you are doing, you are maintaining complete your books of accounts in bank itself. So if you download your bank statement, that is the books of accounts. So how you can say that I have not maintained any books of accounts? Right. Got the point? Right. Yes. So what the loophole is if you withdraw the cash and you don't maintain the cash book, Okay. then you can say to the government, I have not maintained my books in the cash book. So I don't have any supportings for that. So I have to I want to pay only 50% income only. I have to declare 50% income. Okay. So basically, hold cash in hand is the solution to this. Yeah, that is a solution part. So basically, but that is also has to be managed. So that's why whenever a CA is there, the chartered accountant, so his part is like the managing the fund, and he can manage the funds and guide you personally, like how you can manage and do the steps. Right. So that is like a different thing which cannot be said on the on the online portal.
Nice. Thanks. That's Yeah. regarding tips and tricks of saving tax and all things, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि if you are Yeah. earning 50 lakh तो तुम 50 का 50 lakh कैश निकाल लिया, वो गलत हो जाएगा, है ना? वैसा नहीं करना है अपने को. हाँ, Yeah, so जो there are like हाँ, different we have to make a criteria balance. for We have to make a balance out of Right. it. हाँ. Correct. okay. So I think so like presumptive taxation point is clear. ओके, ठीक है. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भी दो तरीके के लॉज होते हैं ना. मैं सबकी तरफ से वो पूछना Yeah. चाहूँगा कि दोनों के लॉ किस में एप्लीकेबल होंगे, किस टाइप के लोगों में एप्लीकेबल होंगे. So let's move forward from this point. हाँ. So basically, I'm not sharing the screen if it is disturbing. So basically, I will be explaining directly only. So basically, what the thing is, there are two options. If you do a business, then you can declare 8% income instead of 50%. So this is a choice. So how it is like it is not advisable and not beneficial for freelancers to declare yourself as a business, because you are providing a technical services, and technical services are covered under professional services only. So whenever income tax raids you or send you a notice, or even anything, if income tax department like want to scare you, so they will be shifting you from the business to professional service only. So they will consider you as a professional service provider only, because in many, if you notice, like if you provide some technical services, it's to the Indian company, not to the foreign company. If you provide any technical services to Indian company, they deduct TDS under section 194J. That J, that the section denotes technical services. So with the help of that section, income tax will trace you that you have provided the professional service and you are filing the return of business service. So it will like contradict, and at any time income tax department can send you notice for that if you declare a business in place of profession. So this is the main difference between the AD and ADA. Nice. This is the two sections. Like ADA is the section for professional service and AD is the section for business service. So this is the basic difference. Okay, thank you. Okay. Yeah, we can move forward. So, okay. So now moving forward. So if now the question is, if someone's income is more than 50 lakhs, then what they will be doing? So if your income is more than 50 lakhs, then you don't have any choice of opting for this presumptive scheme right now for the current year. In this budget, they have announced that they will increase this limit of 50 lakhs to 75 lakhs from next year. So yeah, win-win situation for her. So we can cheer it up for this. So they will be moving that to 75%, 75 lakhs, and with one condition. The condition is your income, 95% income should be in bank only. So that is also for win-win situation for all the freelancers, because right now like 100% income of all the freelancers are from online field only. So that condition is fulfilled. So if your condition is fulfilled, then you can go for the presumptive scheme up to 75 lakhs also. So this is like a good situation for us. And the next thing is, you can, if your income crosses above 75 lakhs, then what? If your income crosses above 75 lakhs, then you can show your income under audit. Like audit is one thing which you have to be like your book, you have to maintain all the books. Your cash book also has to be maintained. Like right now, what I've told in the presumptive taxation, that you don't have to maintain the cash book, but according to bank only, they consider the books of accounts. But if you go beyond 75 lakhs, then you have to maintain the cash book also, and your CA will be auditing your cash book and the bank book and all the vouchers, how you have done the expenses, how you have done the earned the income, and after that your return will be filed. So this is the basic case. So the two main changes in the budget was, first, slab rate for new tax regime, second, 50 to 75 lakh for professional services. These two changes were there for the freelancers. What I found from all the provisions, like there is a long list of provisions. Let me just show you the list. Apart in all those lists, I found only these two major changes for freelancers. One second, I'm sharing the screen. Meanwhile, you can ask any question if you have. From the voice. One second, I'm muting myself. Okay, let's take question first, then I'll be showing you the screen. Okay, one clarification. So when you say the 90% of the 90, you mentioned 50 to 75 lakhs increase, but 90% should be in the bank. You mean 90% of the revenue or the income should be in the bank, or do you draw cash from the bank and the money should be in the bank itself? No. The thing is, you have to withdraw. Like you can withdraw the cash. Your receipt only should be 95% of your receipt only through like banking medium. Like if you provide service to Harshit and Harshit is paying you cash, then that is not considered in that 95%. He has to pay you through bank account only, like UPI or something, so that it can be come under the banking channel. So that is the 95%. So basically, all the freelancers are having the banking channel only. Payments are received through banking channel only. So that is not the issue for any freelancers, I think so. Nice.
Okay. Okay, so right now, like we have discussed the two provisions. Up till now, if any doubt is there regarding your personal taxation also, up to this point, you can consider. Another question. So, if let's say any of us buys stocks in Indian stock market or US stock market and we sell it and we make a 20 lakhs profit, that 20 lakhs is also included in this 75 or 50 lakhs this year, right? No. That 20 lakhs is a separate capital gain. Okay. That is a separate thing. The other income, it will be considered in other incomes. So Okay. that is tax. Like if you that is a short-term capital gain, then the taxation is different. And long-term capital gain, then taxation is different. That is So a different if I story. have 45 lakhs from freelancing income and 30 lakhs from capital gains, I can still go for presumptive. Yeah, you can go for presumptive taxation because that is a different capital gain itself. And if you have a salary also, apart from that, then also you can go for presumptive income because that is also a different thing. So basically, income tax divide all the income in 5 sections. First is salary, second is business, third is capital gain, and fourth is like from other sources. And in the other sources itself, like things come like all the gifts and all comes under the other sources. And the fifth part is house property. Like if you receive any rent from any property. So basically your income is divided into these 5 categories. So business category will not merge under salary category. It will not merge under capital gain category. So that all will be different. So all the taxation criteria will be different for all these 5 categories. Okay. And another new change that has come in the budget this year, not related to freelancing, but related to investing in US stock markets, they have announced that any amount that is transferred 10 or 20% upfront will be TDS. How does that work? When I transfer to, let's say, a vested app, will the app itself hold that money? Yeah, app like the TDS provisions work like this. It is the full form is tax deducted at source. So wherever the source is there of that income, that your tax will be deducted. So if your income source is some XYZ platform, so that XYZ platform will deduct your tax and deposit to government. Okay. So it is like a wallet maintained with the government. So whenever you file the income tax return, you can use that TDS amount as a wallet. So that amount will be used in the paying of taxes when you file the returns. Okay. So it works like that. So let's say I transfer 10 lakhs, then only 8 lakhs will reach my vested account that I can actually use to buy stocks. And No, but you can deposit any amount when you earn something in that app. Then only your TDS will be deducted. Okay. On the earning part. On the earning. So when I sell stocks, let's say I make 10 lakh profit, 8 lakhs, I will get 2 lakhs, they will hold. Yeah, on from the profit part, they will holding the Okay. 20%. So it's just like paying the tax at the same time. Upfront. Like, that's why I'm saying it is like a wallet. You deposit the tax upfront in your wallet to the government. Okay. The TDS, which if anyone deducts your TDS, consider it as a wallet payment. Okay. And let's say a loss happens of 50%, then I can claim some of that TDS that was deducted. Yeah. Then you can take a refund of that when you file the income tax return. Okay. You can take the refund afterwards also. So basically the structure works like this. And in the whole story, one story is of GST also. अभी तक की जितनी कहानी थी ये पूरी इनकम टैक्स थी. तो इनकम टैक्स को तो हमने समराइज कर दिया कि भाई आपके लिए बस 50, 50 और 75 लाख वाला प्रोविजन काम का है और स्लैब रेट वाला प्रोविजन काम का है. बस इतना, ये एक लिमिटेड एरिया पे आप सोच सकते हैं. अब इसके अलावा आता है जीएसटी. अब ये एक सेपरेट, ये एक नया टैक्स आ गया. अब इसमें क्या होता है कि अगर आपकी इनकम 20 लाख से ज्यादा है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको आपका टोटल इनकम कैलकुलेट करना, टर्नओवर के हिसाब से ही सब चीज डिसाइड होता है कि आप इनकम टैक्स में कैसे गवर्न होंगे, जीएसटी में कैसे गवर्न. तो आप जीएसटी में जब आते हैं हम, तो 20% से अगर आपके ऊपर है, 20 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी. तो यहाँ पे तो आपका होगी कि जीएसटी नंबर आपके पास आ गया. अब जीएसटी नंबर आ गया तो भाई अगर आप इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको 18% टैक्स लग जाए. 18% सीधा जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे एज अ फ्रीलांसिंग, उस पर टैक्स लग जाए. अब अगर आप फॉरेन में सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि अभी आपकी कंडीशन है कि आप लोग फॉरेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे एक कंडीशन है कि अगर आपके पास FIRC सर्टिफिकेट है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, FIRC, अगर आपके पास वैसा कोई सर्टिफिकेट है कि आप डॉलर में आप इनकम ला रहे हैं इंडिया में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, 0 जीएसटी पे भी आपका काम चल सकता है. पर कंडीशन ये है कि आपको हर महीने रिटर्न में बताना पड़ेगा कि हमने फॉरेन में ये सर्विस प्रोवाइड करी है, उसका ये FIRC नंबर है, तब जाके गवर्नमेंट ये बेनिफिट देगा. अगर हम बोले कि 2 साल बाद कि हमको तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमको तो जीएसटी लगता ही नहीं और हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं ली, तो यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. फिर आपकी जितनी इनकम है अभी तक की, सब पे 18% लग जाएगा. चाहे आपने एक्सपोर्ट भी करे हो तो भी आपको 18% लग जाएगा. आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. ये कंडीशन है जीएसटी की. तो ये कहानी थी पूरी जो इनकम टैक्स और जीएसटी से एज अ फ्रीलांसर्स रिलेट कर. तो अब अगर जैसे किसी को कोई डाउट था कि सैलरी है तो क्या होगा, तो सैलरी वाला पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि 5 हेड में काउंट होता है इनकम टैक्स. तो सैलरी एक अलग हेड है, तो वो उसका जो गवर्नेंस है वो अलग ही चलेगा. उसको बिजनेस से मर्ज नहीं करना है, मतलब फ्रीलांसिंग इनकम से उसको मर्ज नहीं करना है.
अच्छा, ऐसा है। जैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सैलरी वालों के लिए। फॉर एग्जांपल सैलरी में वो 10 लाख या फिर फॉर एग्जांपल 15 लाख पर एनम उनकी सैलरी है ना, और वो हाँ हाँ फ्रीलांसिंग से 75 लाख ऑलरेडी कमा रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, तो उस केस में जो 75 लाख है वो अलग कैलकुलेट होगा और जो वो अलग सैलरी वो अलग कैलकुलेट होगी। होगा, ओके, वो अलग हो, ठीक है। क्योंकि ये 5 हेड है, हाँ पांचों हाँ हेड का मर्ज नहीं करना है हमें, ओके। पांचों में सब अलग अलग काउंट होंगे हाँ, अक्षय इस अग्रवाल तरीके वांट्स से। टू आस्क Yeah. सम क्वेश्चन, प्लीज गो Yeah. अहेड अक्षय। Actually, we same question, but not 75 lakh, of course. So I have a salary and I do freelance. तो like should वो जो आपने presumptive वाला कहा, तो like और जो मेरी salary उसके लिए I do according to the old slab regime, so like I earn most of my taxes through that. या तो but freelance का I haven't included in that. And freelance का भी it's a good amount, so उस पे भी tax हो सकता है. So can I file tax separately या कैसा होगा? Like should I नहीं club? नहीं नहीं, एक रिटर्न आपका एक ही जाता है। ये 5 जो मैंने आपको इनकम बताया वो सब एक ही रिटर्न पे जाएगा, मतलब ऐसे अलग अलग रिटर्न फाइल नहीं कर सकते कि भाई हम प्रिजम्पटिव के ये बिजनेस इनकम के लिए एक अलग फाइल कर दें, सैलरी के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। सब क्लब होता है एक साथ, So और मर्ज होने के बाद फिर वो फाइल होता है। तो okay, so इसीलिए ऐसा है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वो इनकम जो आपके पास अलग इनकम है फ्रीलांसिंग की, वो आपको सैलरी के साथ साथ उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, सो मेरा रेजिम उसके हिसाब से चेंज हो सकता है जहाँ पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, ज्यादा प्रॉफिट। बेसिकली क्या होता है कि सैलरी वालों को फायदा ओल्ड में ही रहता है ज्यादातर, क्योंकि अपने सैलरी कंपोनेंट में कई सारी चीज ऐसी रहती है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस रहता है तो उसका बेनिफिट मिल जाता है, बहुत सारे ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंसेस रहते हैं, इंश्योरेंस भी कंपनी वो अलग देती है, अलग आई थिंक, है तरीके ना। से ट्रैवल अलाउंसेस। हाँ, तो वो सारे जो पीएफ कटता है तो वो सब बेनिफिट जो है वो ओल्ड में ज्यादा मिलता है, इसलिए लोग ओल्ड पे प्रीफर करते हैं सैलरी वाले जितने भी रहते हैं। एक क्वेश्चन मतलब मुझे ना मैसेज आया था कि FIRC वगैरह कैसे लेना है। तो 2 थिंग्स आई थिंक हमने ये ऑलरेडी ट्विटर स्पेस पे भी मतलब डिस्कस किया था कि द बेटर वे ऑफ गेटिंग योर मनी डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट बाय यूजिंग स्विफ्ट कोड, क्योंकि अगर आप वैसे करोगे तो आपको बैंक डायरेक्टली आपको मेल कर देगी FIRC, एक बार पैसा आने के बाद बैंक विल मेल यू। बट आप अगर सर्विसेज यूज कर रहे हो जैसे कि ट्रांसफरवाइज हो गया, मोस्टली वो कर, पेयोनियर यूज कर रहे हो तो पेयोनियर वाली भी दे देते हैं, बट ट्रांसफरवाइज अगर आप यूज कर रहे हो देन यू हैव टू लुक कि जो ट्रांसफरवाइज ने आपको पैसा भेजा है वो किस बैंक ने प्रोसेस किया है, एंड देन यू हैव टू मेल देम, एंड ऑल्सो ट्रांसफरवाइज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ करना है। तो आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू यूज ट्रांसफरवाइज, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें वही है, FIRC वो लोग नहीं देते हैं साथ में ट्रांजेक्शन के, और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि उनके हर बैंक अलग अलग टाइप के बैंक प्रोसेस करते हैं। कभी HDFC करता है, कभी येस बैंक करता है, और वो बैंक वालों के मूड के ऊपर है कि वो FIRC देंगे कि नहीं देंगे। मेरे साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे ही था। येस बैंक के साथ रिसेंटली मेरा केस हुआ, उनको मैं एक मेल किया ट्रांजेक्शन के साथ, उनकी फीस भी पे कर दी FIRC की में, वो लोग मेरे को 3 FIRC दे दिए। नेक्स्ट डे मैं 3 और ट्रांजेक्शन की FIRC के लिए उनको मैसेज किया तो वो बोलते हैं कि हम आपको नहीं दे सकते, आपको अपने बैंक से प्रोसेस करवाना पड़ेगा रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट डे वो लोग दे दिए, सेकंड डे मना कर दिए, तो उनके पूरा मूड के ऊपर रहता है। तो तब जो ज़्यादा अच्छा तरीका है वो ये है कि यू यूज़ प्लेटफॉर्म्स लाइक स्ट्राइप, पेपाल, और पायनियर सबसे अच्छा है, उसको यूज़ कर सकते हो। और द अल्टीमेट ऑप्शन इस कि आप स्विफ्ट का यूज़ करके डायरेक्टली पैसा अपने बैंक में मंगाएं। उसमें कुछ दिन लगते हैं, 2-3 दिन लगते हैं, और फिर उसको क्लियरेंस के लिए भी 1-2 दिन हो सकता है बैंक से लग जाए, बट इट्स द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ FIRC आपको बैंक डायरेक्टली देगा। तो हाँ, और FIRC इज अल्टीमेटली द प्रूफ फॉर योर सेल्फ कि ये इनकम बाहर की है, ये इनकम इंडिया की नहीं है, यू आर अर्निंग दिस मनी फ्रॉम आउटसाइड। तो वो उसका एक प्रूफ होता है। अगर गवर्नमेंट पूछती है कि ये पैसा बाहर का, उसको प्रूफ करो, तो यू हैव द FIRC सर्टिफिकेट विथ यू ऑल द टाइम, एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो मैंडेटरी इन GST फॉर एक्सपोर्ट, है ना, क्योंकि वही एक प्रूफ है हमारे लिए। Yeah, this is the basic ingredient for the considering as an export. ओके, और एक चीज वाइज का मतलब इशू हो रहा है कि आई थिंक दे हैव 3 प्रोसेसर्स, कि उनके पास आई थिंक एक है HDFC, दूसरा है येस बैंक, और तीसरा और कोई बैंक है जो मुझे याद भी नहीं आ रहा नेम, बट दे हैव थर्ड बैंक जो है उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर हमारे बैंक से प्रोसेस हो जाए तो हम FIRC नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उनको मतलब अपने बैंक को देखना पड़ेगा। सो लाइक यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप तो मतलब ट्रांसफरवाइज से दूर ही रहो तो बेटर है अभी फिलहाल, है ना, जब तक वो Yeah. इंडिया में अपना इंटीग्रेटेड को सिस्टम नहीं ले आते जहाँ पे ऑटोमेटिकली तुमको FIRC मिल रही है। तो या दैट विल बी बेटर। तो अभी रजत सर, मैं आपसे कुछ अलग क्वेश्चंस और GST के बारे में क्वेश्चंस जो मन में आ सकते हैं लोगों के जनरली जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। पहला तो जैसे 20 लाख की हमारी जो रेंज है ना, तो वो हमारी एक्सपोर्ट के लिए भी है, मतलब एक्सपोर्ट में के लिए हमको ग्राउंड अप से करना है कि उसमें भी 20 लाख होता है अगर हम एक्सपोर्ट 20 लाख ही है सबके लिए, 20 लाख है, सबके कुछ लिए भी 20 सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 20 लाख। Okay, एक्सपोर्ट तो- भी हो सकता है उसमें, इंडियन भी हो सकता इंडियन भी हो सकता है। ओके, वो 20 लाख है, ठीक है। और हम कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि हमारे इंडियन क्लाइंट्स भी होते हैं और हमारे फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं। तो Okay. जनरल उसमें कैसी प्रोसेस होती है GST की? जो बाहर वाले हैं उसमें तो हम FIRC रखें एज अ प्रूफ कि हम उसमें टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, और उनके बिल में हमको ऐड करना है कि नहीं करना है। जब हम अपने फॉरेन क्लाइंट को बिल भेज रहे हैं तो उसमें GST होगा कि नहीं होगा, और हमारे इंडियन क्लाइंट को हम अगर बिल भेजते हैं तो उसमें GST होगा कि नहीं होगा, ये क्या डिफरेंस आता है? या देखिए, फॉरेन क्लाइंट को जब आप बिल कर रहे हैं तब आप ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई GST तो लग नहीं रहा है, तो उसमें हमें कोई GST चार्ज नहीं करना है। तो उस जो वो बिल रहेगा वहाँ पे विदाउट GST बिल चार्ज होगा। और जो इंडियन क्लाइंट है वहाँ पे आप बिल में GST ऐड कर सकते हैं, और सामने वाला जो अगर कोई कंपनी है या फिर बिजनेस ओनर है जिसके पास उनका GST नंबर हो तो आप उनका GST नंबर भी बिल में मेंशन करिए, ताकि फिर जब आप अपने CA को अपना बिलिंग सारा भेजेंगे तो वो आपके रिटर्न में अपलोड कर सकते। इसमें कैसा चलता है, 1-to-1 मैचिंग सिस्टम चलता है। जब अगर मैं अपलोड करूंगा रिटर्न, तब सामने वाले को वो दिखेगा कि ये मैंने हर्षित से सर्विस लिया था और इसमें इतना GST मिला है, तो वो आगे चल के उस GST को यूज कर सकते हैं।
तो ये भी एक वॉलेट सिस्टम है। तो जितना जीएसटी जो चलता है वो एक बार अगर ट्रांसफर करते जाते हैं हम एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर, फिर दूसरे कस्टमर, तीसरा कस्टमर, इस तरीके से ये जीएसटी एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। जो इसकी पूरी कहानी है वो इस तरीके से चलती है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे काम करता है वो अगर मैं समझाने जाऊँ तो वो एक बहुत बड़ा प्रोविजन है। इसलिए मैंने क्या है आप लोग को एक ईजी लैंग्वेज से समझाने की कोशिश के लिए मैं बता रहा हूँ, वो एक वॉलेट जैसा है जीएसटी, आप अपने वॉलेट से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे के वॉलेट, वो उसको फिर यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सामने वाले का जीएसटी नंबर आप मेंशन करें बिल। ओके और एक मतलब दूसरा क्वेश्चन था कि आई थिंक देयर आर सम डिफरेंसेस। अगर हम सपोज मैं कर्नाटका स्टेट से हूँ और मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ सेम स्टेट में, तो वहाँ पे अलग तरीके से जीएसटी मतलब उसका मतलब मुझे लेना होगा। और अगर मैं आउटसाइड द स्टेट कर रहा हूँ तो जो सी जीएसटी और एस जीएसटी का जो कंपोनेंट है और मतलब मुझे इनवॉइस में कैसे लिखना होगा उसका मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए दो ही सिस्टम होता है, एक होता है कि आप अपने स्टेट में कोई सर्विस दे रहे हैं, तो अगर आपके अपने स्टेट में सर्विस दे रहे हैं तो वो जो जीएसटी अमाउंट है वो क्या होता है कि दो लोगों में बढ़ता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक स्टेट गवर्नमेंट। इस तरीके से दो लोग उसको आधा आधा बांट लेते हैं उसको। अब अगर मान लो आपने उस स्टेट में सर्विस नहीं दी, दूसरे स्टेट में सर्विस दी, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आपस में दोनों स्टेट की लड़ाई हो जाएगी, ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो पूरे पैसे को बोलती है कि मुझे दे दो सेंट्रल, तो वो वहां पे उसका नाम रखे हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आईजीएसटी तो इंटीग्रेटेड है, सारा मिक्स है, तो वो एक साथ हम गवर्नमेंट को देती है। अब गवर्नमेंट वहां से बांट देगी, अच्छा हर्षित तुम छत्तीसगढ़ के हो, तुम मध्य प्रदेश के, तो आधा आधा वो बांट लेंगे फिर बाद, ताकि लड़ाई ना हो स्टेट्स के बीच में। इसीलिए ये सिस्टम बना है कि भाई अगर स्टेट के अंदर अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगा लो, तो स्टेट वाले भी खुश, सेंट्रल वाले भी खुश। और अगर दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो फिर आईजीएसटी लगाओ, ताकि सीधा सेंट्रल के पास जाए, फिर वो बांटे जिसको जितना देना। ओके सो हम मतलब जब भी हम क्लाइंट को इनवॉइस रेज कर रहे हैं तो सेम तो स्टेट आपको का है ये- तो हमको मेंशन करना हाँ। होगा सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% मतलब 18%, और correct. बाहर के स्टेट के लिए आईजीएसटी लिख के 18% लिख के 18% पे करना है। मैंने इसीलिए आपको एग्जांपल के थ्रू बनाया कि आपको ये याद रहेगा कि ऐसे में लड़ाई हो जाएगी दोनों स्टेट की, तो आपको याद रहेगा, अरे नहीं नहीं इनकी लड़ाई नहीं करवाना है, आईजीएसटी को भेजो। तो इससे याद रहेगा बिल बनाते वक्त कि आईजीएसटी चार्ज करना। और इसके लिए तो हम बिल के फॉर्मेट्स निकाल सकते हैं इंटरनेट से, है ना, उसमें तो फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे। हाँ हाँ फॉर्मेट अवेलेबल है, तो आप फॉर्मेट निकाल सकते हैं। और बाकी अब मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा कि आप अपना डाटाबेस अलग से मेंटेन करें, एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाएं या फिर गूगल शीट बनाएं, जिसमें कि प्रॉपर हर एक कॉलम बनाएं कि ये जीएसटी नंबर है, ये इनवॉइस नंबर है, ये डेट है, कितने की सर्विस प्रोवाइड करे, उस दिन जिस दिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो पैसा आ रहा है उस दिन का कन्वर्जन रेट क्या था, डॉलर कन्वर्जन रेट, वो भी जरूरी है क्योंकि हमें तो इंडियन रेट के हिसाब से रिटर्न भरना है और पैसा आ रहा है हमारा डॉलर में, तो इसलिए जरूरी है कि उस दिन का कन्वर्जन रेट भी याद रखें। या तो फिर अपने बैंक में अगर सीधा आ जा रहा है तो वो सफिशिएंट है, बैंक में जितना पैसा आया उसके हिसाब से बिल रेज कर सकते हैं। आई थिंक एफआईआरसी पे मेंशन होता है पूरा चीज की। हाँ ये सारी चीजें होती है। तो क्या होता है कि इसीलिए अगर ये सारी चीजों को क्लब करके आप एक अपना डाटाबेस बना ले, जैसे कि नोशन में आप बना सकते हैं या फिर गूगल शीट में बना सकते हैं, तो वो कन्वीनियंट रहता है ताकि आप शेयर कर सकें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। या तो फिर कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जोहो है, क्विक बुक्स है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अकाउंटिंग पर्पस से। पर्सनली मैं व्यापार यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, जिसको यूज़ करना होगा बता देना, मैं अपनी रेफरल लिंक भेज दूंगा सबको, है ना। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें यू कैन एंटर ऑल द इनकम्स, है ना। तो जीएसटी रिपोर्ट भी एक बार में बना के दे देता है, यू कैन डाउनलोड द जीएसटी रिपोर्ट, जो कि तुम्हारे फिर जीएसटी पोर्टल में अपलोड होगी। तो अच्छा सॉफ्टवेयर है, सिंपल टू यूज़ है बहुत ज़्यादा, बस मैनुअल एंट्री करनी है तुमको उसमें, जो भी इनकम आ रही है उसकी, है ना। आई थिंक जोहो बुक्स भी बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने यूज किया, आई थिंक निरंजन भी यूज करता है, उसमें आप इनवॉइसिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हैं। जोहो भी बहुत बढ़िया है। जोहो क्या है, बैंक स्टेटमेंट से भी लिंक कर देता है। हाँ। तो आपके एक्सपेंसेस जो है वो आप उसमें पहले से डिफाइन कर सकते हो कि ये एक्सपेंस मेरा क्या हेड पे शो होगा, ये मेरा एक्सपेंस है कि नहीं है। फिर फ्रेंड से मैं लोन ले रहा हूँ या लोन दे रहा हूँ, तो ये भी बहुत चलता है, वो भी मेंशन कर सकते हैं। फिर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश कितना विड्रॉ हो गया, तो वो सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए अलग अलग शीट बनाने से अच्छा है, डाटाबेस बनाने से अच्छा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना। जैसे हम लोग जो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग बेसिकली जनरल बिजनेस में प्रीफर करते हैं टैली अगर आप लोगों ने सुना होगा तो सबसे ज्यादा टैली यूज होता है। पर ये क्या है, अब फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में थोड़ा सा लगेगा अरे ये कितना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करें, बट वो एक बेसिक क्रक्स, मतलब क्या होता है ना, अकाउंटिंग का बर्थ प्लेस है। तो अकाउंटिंग का बर्थ प्लेस है, इसीलिए हम लोग सारा कुछ वही यूज कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं सबकी तरफ से अगेन पूछना चाहूँगा जीएसटी के बारे में। जैसे जनरली हम लोग के साथ ये होता है, हम लोग सोचते हैं कि लिमिट हमारे पास 20 लाख की है ना, नाउ वी स्टार्ट थिंकिंग कि यार लेट्स वेट फॉर द लिमिट टू क्रॉस, उसके बाद वी कैन रजिस्टर, है ना। ये जनरली थिंकिंग होती है, जो मेरी भी थी, मेरे से मिस्टेक हुआ था, आई मेड अ मिस्टेक कि मेरा वो लिमिट क्रॉस हो गया था, मेरे को पता नहीं था कि यार मेरे को आई हैव टू फाइल द जीएसटी नाउ, है ना। तो वो फिर बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज कि हम लोग को जीएसटी जब वी आर स्टार्टिंग अवर कैरियर, इवन इफ वी आर अर्निंग 50,000 रुपीज़, है ना, अगर हमारा इनकम कम भी है, लिमिट के अंदर भी है, सो शुड वी रजिस्टर फॉर जीएसटी, हम लोग जीएसटी रजिस्टर कर सकते हैं या फिर हमको करना चाहिए? और अगर करते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी विल गेट, इवन वी आर नॉट पेइंग द टैक्स, बट टैक्स नहीं पे कर रहे हैं वहाँ पे, बट फिर भी हमारा कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता है? यस, ओके, गॉट इट। देखिए अगर आप जीएसटी नंबर 20 लाख की लिमिट को एक बार के लिए हटा दीजिए और जैसे आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग चालू कर रहे हैं, तो आप अगर नंबर ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि आपकी आदत जो है वो प्रॉपरली पहले से ही मेंटेन हो जाती है कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन किस तरीके से करना है, सारा कुछ सिस्टम जो है वो आपका पहले से ही स्टार्टिंग पॉइंट से सेट होना चालू हो जाता है, डाटाबेस मेंटेनेंस।
वही जब आप एक बार 20 लाख क्रॉस कर देंगे तब वो पता भी नहीं चल पाता है, और बीच का जो गैप रहता है तब आपका वो आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाते हैं, तो उसके चक्कर में वो बीच के गैप में बहुत टैक्स लग जाता है। एक तो ये हो गया पॉइंट कि स्टार्टिंग से लेना बेनिफिशियल है। दूसरा बेनिफिट ये है स्टार्टिंग से लेने का कि होता है कि एज अ फ्रीलांसर जब आप लोग चालू करते हैं तो इनिशियल जो एक्सपेंस होता है, कंप्यूटर खरीदना और लैपटॉप खरीदना, मोबाइल को तो कंसिडर नहीं करते, पर्सनल यूज पे आ जाता है कई बार, और लैपटॉप जो है जो आपको बेसिक नीड है, आपका ऑफिस सेटअप है, तो ये सब खर्चा जो आपको फर्स्ट ईयर पे जब आपकी इनकम कम रहती है, तो ये सब जितना भी आप खर्चा कर रहे हैं इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं। जैसे आप मान लो कोई लैपटॉप खरीदे तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। तो मान लो आपका लैपटॉप है 2 लाख का, तो 28% के हिसाब से उतना आपका टैक्स आ गया, तो उतने का बेनिफिट आप अपने वॉलेट पे सेव करके रख सकते हो। और अगर आप ये नहीं लेते हो जीएसटी नंबर, तो ये आपका जो बेनिफिट है वो लैप्स होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट इससे मिलता है आगे चल के। मान लो फिर आपका कोई इंडियन क्लाइंट है, तो आप इंडियन क्लाइंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, 18% जीएसटी आ रहा है, तो वो वॉलेट से यूज हो जाएगा लैपटॉप के क्रेडिट से। तो समझ लो लैपटॉप ने हमारा टैक्स बचा दिया, एक प्रकार से हम ऐसा समझ सकते हैं। तो मतलब सॉरी, मतलब जो भी मतलब हम इनपुट क्रेडिट हमको जो मिलेगा, हाँ। वो पर ईयर मतलब वो जीरो हो जाएगा या फिर वो चलते रहेगा कि हमारे अकाउंट में तो नेक्स्ट साल भी हम उसको यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं, अब वो चलता रहेगा। पर होता क्या है कि ना, अगर हमारा ईयरली टर्नओवर के हिसाब से हमको क्या रिवर्स करना पड़ जाता है कि अगर हमने पूरा जीरो रेटेड सप्लाई कर दिया, वो ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो क्या होगा कि हर साल रिवर्स करना पड़ेगा आपको, कि आपको यूज नहीं हो रहा है तो वो रिवर्स हो जाएगा। बट होता यह है कि इनिशियल ईयर में वो यूज हो ही जाता है लगभग, और थोड़ा सा भी यूज हो गया तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टर्नओवर के हिसाब से। लेट सपोज कि फर्स्ट ईयर पे अपन ने एक्सपोर्ट किए, जो एक्सपोर्ट की सर्विस से इनकम आई वो 5 लाख रुपीज, और अदर 5 लाख रुपीज जो है वो इंडियन क्लाइंट्स है, तो मतलब हम 50% जो क्रेडिट है उसको यूज कर सकते हैं, 50% यूज नहीं कर सकते। सिंपल ये कहानी है। ओके ठीक है। और जो क्रेडिट हम यूज़ नहीं कर सकते, जो एक्सपोर्ट का क्रेडिट मिलता है, फॉर एग्जांपल कि मैं खाली एक्सपोर्ट करता हूँ और मेरे बैंक में क्रेडिट मतलब जीएसटी पोर्टल में मेरे क्रेडिट जमा हो रहा है मेरे वैलेट में, है ना, तो क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बाहर के हैं तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता जीएसटी में, तो क्या उसको मैं कैश में निकाल सकता हूँ या अपने बैंक में एज अ रिफंड ले सकता हूँ? हाँ, उसके लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अलग से आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना रहता है कि मेरी पूरी एक्सपोर्ट सर्विस है, मैंने कोई भी इंडियन क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसके बेसिस पे वो कंप्यूटेशन निकलेगा और उसके लिए फिर आपको जितना भी आपका पैसा होगा वो रिफंड आ जाएगा आपके बैंक। तो बहुत बेनिफिशियल रहता है स्टार्टिंग से जीएसटी नंबर लेना, क्योंकि बहुत सारे आपके इस तरीके के जो एक्सपेंसेस है वो फर्स्ट ईयर पे ही होते हैं मोस्टली। मैंने जो देखा है, जितने भी फ्रीलांसर्स का मैंने देखा है, मोस्टली लोग फर्स्ट ईयर पे ही सब जैसे ही चालू करते हैं, थोड़ा सा इनकम आता है तो वो पूरा एक्सपेंस कर लेते हैं इन चीज़ों को। मेरा और एक मतलब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, क्योंकि आई थिंक मैंने आपके वीडियो में देखा था कि लाइक वॉट एवर वी बाय, क्योंकि बहुत सारे मतलब एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स वगैरह बाय करते हैं लाइक हमारे को मतलब जो नीड होती है, तो सपोज आई बाय दिस मैकबुक एट अ फर्स्ट ईयर, तो हमको ओवर द लाइक पीरियड ऑफ 5 years हम उसको डिप्रिशिएट करके वो भी मतलब उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पहली चीज। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आई बॉट अ लैपटॉप और आई बॉट अ ईयरफोन्स और एट ईयर 1, तो क्या मैं उसको मतलब 5 साल तक मैं कुछ बाय नहीं कर सकता, या फिर मैं अगेन सिमिलर परचेस कर सकता हूँ अंडर जीएसटी इनपुट लेके पूरा? मतलब ठीक है, पहले तो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करता हूँ। देखिए, इसमें ना 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे 2 नाम है जो इनकम टैक्स में चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा हो गया, जो कि कोई एक प्रकार से हम ऐसा मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स, बड़ा कोई एसेट जैसे कंप्यूटर एक हो, जो आपको भाई 5 सालों तक यूज आएगा। और हेडफोन्स जैसे हो गए कि वो हर 2-3 महीने में हम चेंज कर रहे हैं हेडफोन्स, तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू। ऐसे 2 अलग अलग हो गए, कैपिटल अलग, रेवेन्यू अलग। तो अगर कैपिटल खर्चा है तो हम ओवर द ईयर उसको बांट सकते हैं कि भाई 20% 15% इस साल, फिर 15% अगले साल, इस तरीके से उसको बांट सकते हैं। और अगर जैसे इस टाइप के खर्चे हो गए जो कि छोटे मोटे खर्चे जो हर थोड़े दिन में लगते हैं, तो उसको आपको फर्स्ट ईयर में ही पूरा चार्ज करना। तो ये तरीका होता है। और सेकंड क्वेश्चन ओमकार जी आपने क्या पूछा था? एक और एक मतलब मैंने ये मतलब देखा था कि सपोज आई लैपटॉप बाय करता हूँ या फिर मैं फोन बाय करता हूँ, तो और उसके ऊपर मैं मतलब जीएसटी इनपुट लेता हूँ, क्रेडिट लेता हूँ, तो मैं अराउंड मतलब 2 फिक्स मतलब पीरियड के लिए कि 5 साल के लिए मैं और एक बार सेम चीज बाय करके उसके ऊपर और क्रेडिट नहीं ले सकता? नहीं, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। आप चाहे तो हर महीने आप नया कंप्यूटर लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस पर आपको जीएसटी मिलता रहेगा, मतलब जीएसटी का क्रेडिट आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा। अगर आपको लग रहा है तो आप खरीदिए और अपने दोस्तों को भी बेच दीजिए। बट इसमें ये है कि फिर वहां से चार्जेस लगना और चालू हो जाएगा, वो एक अलग कहानी हो जाएगी, वो एक अलग बिजनेस चालू हो जाएगा, तो वो एक अलग चीज है। बट ये है कि आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आई थिंक ओमकार, जो तू ना वहाँ पे 2 चीज़ को मिक्स कर ले रहा है वहाँ पे, मतलब एक डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में होता है और जीएसटी वन टाइम होता है। हाँ, तो जीएसटी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सपोज मैंने अभी आईफोन ये साल खरीदा, तो मैंने ये देखा था, आई डोंट नो वेयर, यूट्यूब वीडियो पे देखा था कि एक बार मैं लेता हूँ तो दैट इज आई एम ऑलरेडी यूजिंग दैट, तो मैं 5 साल तक कुछ मतलब और एक बार आईफोन खरीद के उसके ऊपर मैं जीएसटी इनपुट नहीं ले सकता? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी लॉ पे नहीं लिखा हुआ है ऐसा कोई सा नियम। हो सकता है इसीलिए ना क्या कि लेजिटिमेट चैनल ही फॉलो करिए तो बेटर है। यूट्यूब में भी क्या है ना, कई तरीके के ज्ञान मिलते हैं, तो पर इसमें जो डेडिकेटेड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यूजुअली अगर बातें अगर किसी की सुननी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही प्रेफरेबल पर्सन है जिसकी बातें सुना जाए।
Yes. I have a question. Yeah. Can you hear me? Yeah, Yes, yes. yeah. As a sole proprietor रजिस्टर करना चाहिए अपने को या नहीं करना चाहिए, या आई मीन अभी तक मैं अपना नॉर्मल अकाउंट से सब कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा था. देखिए, नॉर्मल अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने का मतलब है कि आप ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटर है। मतलब आपको अलग से सोल प्रोप्राइटर करके कुछ अलग से कुछ ऑप्ट करने का नहीं रहता है। वो इंडिविजुअल को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो मतलब ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। लाइक बैंक अकाउंट, अगर मैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बैंक अकाउंट खुलवाने जाता हूँ, देन कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. देखिए, पैन कार्ड से डिपेंड होता है। तो आपका पैन कार्ड तो आप अगर आप जो आप अपने सोल प्रोप्राइटर नाम से अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वो भी पैन कार्ड तो आपका वही रहेगा। यस यस. इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है. कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को मानता है, वो है पैन कार्ड। जैसे अगर हम कुछ और चीज करते हैं तो आधार कार्ड है। जैसे अगर इंडिविजुअल को प्रूफ करना है तो आधार कार्ड है। जैसे कोई चीज में अगर प्रूफ करना है कि मैं रजत अग्रवाल हूँ, मेरे को प्रूफ करना है तो ये है आधार कार्ड। और अगर मेरे को प्रूफ करना है कि मैं कुछ बिजनेस करता हूँ तो उसके लिए है पैन कार्ड। तो वो सबके लिए कॉमन रहेगा सारे पोर्टल पे। ओके. और सर एक क्वेश्चन जो और लोगों को माइंड में आता है इनिशियली स्टार्ट करते टाइम, सेविंग्स अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट का बहुत जनरल क्वेश्चन है. हाँ. तो हम लोग को कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए फॉर आवर ट्रांजेक्शंस, वो भी आप, और क्यों करना चाहिए वो भी आप हम लोग को बता दीजिए. देखिए, आप लोग के लिए बेनिफिशियल है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें कई सारे बेनिफिट्स रहते हैं। फॉरेन ट्रांजैक्शंस आता है तो FIRC चार्जेस कम लगते हैं, सेविंग अकाउंट्स पे ज़्यादा लगते हैं। इस तरीके की स्कीम्स रहती है बैंकों की। तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, पर आप फॉरेन का जो जिसमें FIRC के चार्जेस कम लगे वैसा वाला करंट अकाउंट चूज कर सकते हैं और वो आप ओपन करवा लीजिए उस तरीके का अकाउंट। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी जो भी वर्किंग है वो पूरी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। सेकंड पॉइंट ये है, क्या होता है सेविंग अकाउंट में कभी हम जोमेटो का पेमेंट कर रहे हैं, कभी हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पर्सनल खर्चे इतने हो जाते हैं जिसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटर है कि एक सेपरेट अकाउंट रहे बिजनेस के लिए, जिससे कि भैया मेंटेन कर पाए कि इसमें सिर्फ बिजनेस के खर्चे होंगे, इसमें सिर्फ बिजनेस की इनकम आएगी, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये सेविंग, इसमें मैं पर्सनल खर्चे करूंगा जो भी मेरे को करने हैं। तो ये सेपरेशन बना सके ताकि। ठीक है, वन क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, हाँ. लेट्स से मैं एक लैपटॉप मैकबुक प्रो आई बाय 2.5 लाख एवरी मंथ एंड आई कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट 2.5 लाख का 18% कुछ 40,000 होता है, एंड देन I can also claim every single year for each laptop that I bought. Let's say I bought hypothetically one laptop every month. Yes, you can do that. You can do that. For 12 laptops next year, I'll claim 12 into 2 lakh, 2.1 lakh to be I have paid into 18%, 15% depreciation for each laptop. Yeah, you can do that, but at the end, what you will do of so many laptops? Yeah, just hypothetical. Yeah, so that the situation is only hypothetical. How there is no answer for that because that is of no use. Team bhi le lu for let's say myself or. Yeah, you can do that if you take n numbers of fixed assets. Government is saying you can take the benefit of the GST. Okay. There is no issue. But the one thing, if you will say afterwards, your thought will be there. Now I will sell these laptops. Next thing you can think, like hypothetically you can think that also, that I will now start selling this laptop and take benefit of the GST also and sell also. But when you sell, then at that point of view you have to pay 28% GST on that selling price also. Okay. So that also you have to consider. So the crux will be zero. Here you will be taking 28%. Here you will be paying 28%. So that will be like of no use. Okay. Yes. सेविंग्स और करंट अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? या प्लीज. Yeah, please. We are at the end of our guys, so more questions and then. Okay. So account, let's say मैं करंट अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ और बट मैंने ITR फाइल नहीं करा अभी तक प्रीवियस ईयर्स का. Okay. And so what would be the reaction from government side and bank? Would I be will they charge me penalty or something? Depending upon them. No, nothing like that. Like these departments are different. Income tax department is different. GST department is different. Bank is a different entity. So if you don't file income tax return, there is no complication in opening bank account. So when you go for opening the bank account, they don't ask you income tax return of last year. So they ask you documents. I mean, if it's for like sole proprietorship account, then they no. ask. For sole proprietorship, you need some business proof like Gumasta, shop establishment certificate, basically, or something GST certificate. If you have this kind of certificate, you can open your current account. No need of income tax return. अभी द बेस्ट थिंग यू कैन डू अरविंद इज रजिस्टर योरसेल्फ इन उद्यम आकांक्षा स्कीम. तो वो अभी आई थिंक लेटेस्ट है, राइट रजत सर? No, but still if you get the udyam akansha, you need one more proof. Okay. Two proof is required. One is basic proof, one is additional proof. So additional proof is udyam akansha certificate. But for the first proof, either you can take GST registration or you can take Gumasta certificate, that is shop and establishment certificate from your nagar palika, your municipality, in your municipality. Shop I think certificate. It is shop establishment certificate, right? Yeah. Okay. Sir, I have like another question because as you said, for opening current account you need documents. But I opened my current account before like having anything, like no GST, no certificate. But I just
oh, like I just went there and they gave me a current account. So is it depending upon state? There are different rules. Yeah, might be. It depends Yeah. on banks also. Like Yeah. if some private bank is there which are not following any rules, then they can do that. But Yeah. according to the rules, they require these documents. But like there are some leniency in the private banks, in some of the banks. So you can try in the particular bank in your city, whichever is preferred. So Omkar has mentioned, if they are opening, you can mention the bank name also. So Yeah, I said everyone- yeah. Okay, so ICICI Bank usually don't do this. Like in our city or state, they don't do this. They require the two proof. So basically, you have to inquire with your bank if what all proof is required. If they are comfortable with no proof, then you can open. But I don't think so. They will do that. Okay. Now. Yeah, because I guess like for registering GST, you need current account. So No. It's vice versa. It's a different. Like if you need GST certificate to open current account. You don't need current account to register for GST. okay, but I think like they never asked me. Like I just went there and I gave my documents, and they asked me to just send them a photo of my office space, and I sent them a photo and like. Once you cross check, they have opened the saving account or current. Yeah, account. no, it's current account. Like they give me all the benefits that I. Was it all digital? Yeah, Was it I all did digital? all. No. It is proper current. नो account. एक्चुअली वो रीजन वाइज डिपेंड करता है मैंने भी पर्सनली ऐसे शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था आई रजिस्टर्ड इन उद्यम आकांक्षा और उद्यम आकांक्षा के मतलब एज अ प्रूफ उस मेरा करंट अकाउंट ओपन हो गया था और जीएसटी भी रजिस्टर हो गया था तो उद्यम आकांक्षा से हो गया था आई थिंक वो अगेन रीजन पे डिपेंड करता है मतलब कि हाँ, तुम्हारे region to region it depends. And bank to bank also it बैंक टू depends. बैंक या एसबीआई में मेरे ख्याल से ये रूल्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स है ना Yeah. एसबीआई में डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है थोड़ी I would not prefer anybody SBI. I mean, Yeah. Definitely not. No, But no, HDFC Bank asked me for GST certificate. हाँ Until then, they did not give me current account. So that is. हर्षित आपसे आपकी ITR से रिलेटेड वो भी मांगा था जब आप करंट अकाउंट खुलवा रहे थे. नहीं आईटीआर से रिलेटेड कुछ नहीं मांगेंगे आपको करंट अकाउंट इज यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस है ना अगर मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास तो आईटीआर है नहीं तो उनको खाली बिजनेस Okay. प्रूफ चाहिए कि आपके पास बिजनेस है तो उसके लिए उद्यम आकांक्षा और गुमास्ता हो गया शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट तो उसके दम पे एंड योर पैन कार्ड तो उसके दम पे आपका करंट अकाउंट ओपन हो गया है ना एंड देन यू कैन स्टार्ट फाइलिंग योर आईटीआर तो आईटीआर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन अ करंट अकाउंट वो हाँ Yeah. Thanks. अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो फिर ITR मांगते हो हाँ निरंजन, अगर फर्स्ट ईयर पे अगर आप लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिर वो बिकॉज देन दे नीड टू नो कि यार ये बंदा वापस कर पाएगा पैसा हमको है ना दैट्स वाई उनको आईटीआर no, चाहिए no. हाँ टैक्स बन रहा है No, लोन तो नहीं बट या रिक्वायरमेंट पड़ती है लाइफ में आगे चल के बहुत जगह लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना इट्स ए स्मार्ट चॉइस समटाइम्स टू टेक लोन इन अ लॉट ऑफ केसेस बट ठीक है आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ओमकार Yeah, Niranjan, last question and then. या प्लीज गो अहेड आई वाज थिंकिंग दैट वी शुड समराइज द होल थिंग मैं जल्दी से सब चीज़ को समराइज कर दूंगा आफ्टर यू आस्क क्वेश्चन एंड रदर सर यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग है ना तो एंड देन वी कैन Yeah, क्लोज द yeah, कॉल sure. ठीक है या Yeah. So in order to register, what all documents would we require and how much timeline are we looking at? कि अगर let's say मेरा आज 19 या 18 lakhs पे पहुंच गया and I need to register for GST and in the coming few months I'll be crossing the 20 lakhs limit. तो अगर उस zone में है हम तो should we be charging GST before we get the GST number or should it be Okay. No, the first thing is you have to take the GST number to charge GST. If without GST number, if you are charging GST, that is illegal, basically. So you have to charge afterwards only. So for that process, it takes around 1 week period to register your GST number. So the basic proofs are required: Aadhaar card, PAN card, your business proof like residential proof, trace of business proof, basically like electricity bill and rent agreement or your property documents. So these all things are required to prove your entity, and with the help of that, you will be getting the GST. So that is the basic requirements. So that government can be sure, like if I have to find the Niranjan person, so where I can find him. So they should have some specific place so that they can contact. That is पर अगर हम 20 लाख लिमिट क्रॉस करते हैं तब तक हमारा जीएसटी नंबर नहीं आता है तो हाउ शुड वी बिल द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जब हमें इनवॉइस रेज करनी होती है तब आप बिल के टॉप में लिख सकते हैं कि वी आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन जीएसटी और नॉर्मल आप बिल बना लीजिए जिसमें कि आप जीएसटी ना चार्ज करें इसको आप बेसिकली बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं नॉर्मल आप ऊपर में बिल ऑफ सप्लाई भी लिख सकते हैं जैसे टैक्स इनवॉइस अगर अभी आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप ऊपर में लिखेंगे टैक्स इनवॉइस और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप लिखेंगे बिल ऑफ सप्लाई उसमें टैक्स वर्ड ना I think the question Niranjan was asking is कि already 20 lakhs cross हो गया है ओके and GST number अभी तक नहीं आया है. Okay. Then तो फिर तो आपको पूरा 18% बैक डेटेड पे मतलब जो पुराना आपका जितना ब्रैकेट छूट गया है 20 के बाद जैसे आपने सपोज 25 में हमें पता चला कि हमारे को जीएसटी नंबर लेना था तो जो 5 लाख है उस पे 18% टैक्स हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट जैसे कि सपोज आपने वो इनकम अर्न किया होगा 6 मंथ्स पहले तो 6 मंथ्स पे 18% इंटरेस्ट लगता है ओके तो इसी के लिए बेटर है कि आप जो भी डिसीजन ले स्टार्टिंग से भाई बिजनेस चालू कर रहे हैं तो यहाँ के लॉज समझ के बिजनेस चालू करिए मतलब गवर्नमेंट का बोलना ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हमारे इंडिया के लॉस पता होने चाहिए yeah, and
and that will go out of your pocket क्योंकि clients को तो जाके नहीं बोल सकते कि भाई 18% दे दो हाँ। खेलते हैं। तो फिर वो आप ही को देना है, विद इंटरेस्ट देना है। और इसमें कई लोगों का ये भी है कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेते हैं उन लोगों का भी ऐसा है कि वो बैंक में ही पैसा पड़े रहता है, इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो वो भी गलत है। उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हो सकता है अगर वो आप ना करें मैनेजमेंट तो 4 साल बाद भी नोटिस आ सकती है। और जब नोटिस आती है तब होता क्या है, मैं एक सिनेरियो बता देता हूँ कि जैसे सपोज आपने इनकम एक्सकेप किया है 50 लाख, तो वो आपको पेनल्टी चार्ज करेंगे 50 लाख रुपीज की, और आपको 4 साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आप जितना सेव करना के सोचेंगे ना, उतने में आपकी पूरी इनकम टैक्स वाले लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही इन प्रोविजंस पे ध्यान दें। 100% पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट, ऐसा है राइट? आई थिंक निरंजय का केस मतलब ऐसा ये नहीं था, रियल लग रहा है केस, लाइक हाँ, नॉट लाइक नहीं। तेजस। उसका फेस रिएक्शन देख के रियल लग रहा है। हाइपोथेटिकल नहीं था। इतना नहीं है but Hypothetical। नहीं, मैनेजेबल है। अभी तो देखिए, अभी आप जितनी ये अच्छा है कि आप लोग अभी इसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये सेमिनार पे बैठ के सीख रहे हैं, तो आप क्या है अभी एक्शन ले सकते हैं। तो अभी टाइम उतना निकला नहीं है। अब कई लोग ऐसे अभी आते हैं हमारे पास जो कि जिनका टाइम बहुत निकल चुका रहता है, तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। इनिशियल स्टेज में तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं उसको मैनेज करने में। एक बार वो मैनेज हो जाता है तो फिर एक बार चलता रहता है अपने आप। फिर आपको कोई ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं, या एज अ साइड वे आपका ये सारा कुछ प्रोसेस चलता है। ओके नाइस। ओके ओके, हर्षित, थैंक यू सो मच रजत सर। तो यू नो मैं भी क्या करता हूँ भाई, मैं आई विल समराइज एवरीथिंग। मैं जस्ट 5 मिनट में सब चीज़ें समराइज करके एक साथ बता देता हूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू, है ना। और रजत सर आप मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा अगर कहीं पे भी Yeah, मिस्टेक sure. होती है तो, है ना। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू गाइस इज ओपन अ करंट अकाउंट। इफ यू आर स्टिल डूइंग ट्रांजेक्शंस इन सेविंग अकाउंट, प्लीज स्टॉप इट। वहाँ पे आप अपने करंट अकाउंट से ट्रांसफर करके सेव कर सकते हैं। तो ओपन अ करंट अकाउंट फर्स्ट थिंग, है ना। देन रजिस्टर योर सेल्फ अंडर जीएसटी में रजिस्टर कर लो। पहले अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लो, उद्यम आकांक्षा शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें ले लो। तो इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। यू हैव योर बिजनेस प्रूफ विथ योर सेल्फ। एक अच्छा सा नाम रख सकते हो बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिजनेस नाम है वो हर्षित डिज़ाइंस है, तो वो दैट इज़ रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एज योर बिजनेस। वहाँ से यू कैन ओपन अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन हो जाता है तो रजिस्टर अंडर जीएसटी। भले ही तुमको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, भले यू आर एक्सपोर्टिंग सर्विस टू यूएसए कैनेडा, बट स्टिल रजिस्टर फॉर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्टर होगा तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आप गैजेट्स बाय करते हो, आप फ़ोन बाय करते हो, तो उसमें आपको जीएसटी का जो 28% 18% जो भी चार्ज है वो आपको मिल जाएगा आपके वैलेट में। तो या रजिस्टर फॉर द जीएसटी। उसके बाद आते हैं टैक्सेशन में। तो कैलकुलेट योर टर्नओवर, जो भी तुम्हारे साल की भाई इनकम हो रही है, टर्नओवर जो टोटल आ रहा है ऑल सोर्सेज से। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइवर में भी काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स भी लेता हूँ। तो फाइवर में तो द थिंग इज फाइवर बिकॉज इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसमें जीएसटी लगता है 18% का। तो प्लीज़ मेक श्योर यू चेक आउट दैट सेपरेटली। फाइवर 18% जीएसटी, जो फाइवर की इनवॉइस बनती है उसमें जीएसटी एडेड होता है ना। तो वो डिफरेंट है। बट इफ़ यू आर टेकिंग डायरेक्ट क्लाइंट्स तो वहाँ पे अगेन 20 लाख से ऊपर की इनकम है तो यू हैव टू चार्ज देम जीएसटी, और उससे नीचे है तो यू कैन अगर रजिस्टर्ड है तुम्हारा तो यू हैव टू चार्ज द जीएसटी फॉर इंडियन क्लाइंट्स। और एक्सपोर्ट में आपको जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगी, आपकी इनकम होगी, मेक श्योर टू हैव द FIRC फॉर दैट ट्रांजैक्शन। उसको अपने पास सेव रखना है, बहुत संभाल के रखना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ द ओनली प्रूफ यू हैव फॉर योर सेल्फ कि जो बताती है कि ये इनकम बाहर की इनकम है, ये इंडिया की इनकम नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी भी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन्स हैं जो पहले आ चुकी हैं और उसका आपके पास FIRC नहीं है, तो एक हफ्ते ले लो आराम से और सारे ट्रांजेक्शन को लिस्ट करके ट्रांजेक्शन नंबर जो सा भी तुम्हारे पास बैंक है उनका एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है FIRC का, अपने बैंक को एप्लीकेशन देके FIRC को निकलवा लो, बिकॉज दैट इज समथिंग यू विल गोइंग टू नीड इन फ्यूचर फॉर श्योर। ठीक है। देन बेस्ड ऑन योर टर्नओवर यू कैन फाइल टैक्स। फ्रीलांसर्स के लिए जो 50 लाख की लिमिट थी पहले, जो सेक्शन 44 ADA जो कि हमारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आता है, तो 50 लाख के नीचे जो पुरानी स्कीम थी अप टू 50 लाख वो वैलिड है। उसके बाद यू कैन नॉट गो फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जो हमारी सर्विसेज है प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आती हैं। द न्यू टैक्स सिस्टम जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा, उसमें वो लिमिट 75 लाख तक हो चुकी है। दैट मीन्स कि अगर आपकी इनकम साल भर में हर टाइप के अलग अलग प्लेटफॉर्म से 75 लाख तक की होती है तो यू कैन गो फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। उसके बारे में यू कैन डू मोर रिसर्च ऑन इंटरनेट, बट द होल थिंग इज कि आपकी जो इनकम है वो आपको 50% दिखानी है एंड गवर्नमेंट विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चंस आफ्टर दैट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू अर्न 25 लाख में यू कैन पे द टैक्स बेस्ड ऑन द स्लैब रेट यू आर ऑप्टिंग फॉर। और स्लैब रेट में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है अगेन, ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। और अगर सर वन क्वेश्चन रियली क्विक क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन होगा ओल्ड में जाने का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, कि आई विल ओनली नहीं, ये इस बार से डिफॉल्ट न्यू को बना दिया गया, अगले साल से डिफॉल्ट न्यू को बना दिया जाएगा। तो ऐसे कि अभी अगले साल आपके पास चॉइस रहेगा। तो मतलब इस साल भी आपके पास चॉइस है, बट इस साल अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो अगले साल फिर चॉइस नहीं मिलेगी। अगले साल चॉइस नहीं मिलेगी। ओके नाइस।
तो वो हो गई हमारी इनकम टैक्स की स्कीम, सेक्शन 44 ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। और फॉर जीएसटी में फॉरेन क्लाइंट्स को यू गेट अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप सब मैनेज कर सकते हो, है ना, जो भी ट्रांजेक्शन आपकी आ रही है। फॉरेन क्लाइंट्स को यू डोंट हैव टू चार्ज जीएसटी, बट फॉर इंडियन क्लाइंट्स यू हैव टू चार्ज देम ओनली इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो कि ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर रजिस्टर्ड, चार्ज देम जीएसटी एंड मेक श्योर टू क्रिएट अ प्रॉपर बिल फॉर देम, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस दैट यू कैन फाइंड इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो आप उसका यूज़ करके जनरेट कर सकते हैं प्रॉपर टैक्स इनवॉइस। तो आई थिंक ये जो पूरा समरी है from the whole call that we get, or if I'm missing anything, please add to this, Raja sir. No, perfect. Very nice. Like, this is the perfect audience base when they summarize. They got all my points in the seminar. For me. Okay, because nice. like I was not feeling like that if you are going to grasp all this information in this 1 hour itself. So, but Harshit has done a fantabulous job for Thank you, Harshit. summarizing the whole thing. Thank you so much, guys. Yeah, Thank you so much. thank you, Harshit. But two small points to add to that. 50 lakhs presumptive is for this year. In the new budget, which is applicable for next year, it has been increased to 75 lakhs. 75 lakhs. Yes. Yeah. Point number 2, Harshit mentioned is that on Fiverr while working, it automatically adds 18% GST. But I personally work on Upwork, and Upwork Pay, if you withdraw to your bank account in USD, they will charge you $30 withdrawal fee, but you will get a FIRC. They also have option to withdraw in local currency, but then you will not get FIRC. So don't do that. If you are registered under GST, please withdraw in USD. They will charge you $30 withdrawal fee, but then you will get the FIRC and you don't have to pay any GST. डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर आप कोई और सब यूज़ करते हो फ्रीलांसर एंड ये वो, तो मेक श्योर टू चेक इट कि वो यार वो इंडिया में कई बार जैसे फाइवर इंडिया इंक करके वो रजिस्टर कर लिया अपने आप को, एंड देन व्हेन दे विल पे यू एज अ इंडियन क्लाइंट, है ना। तो वहाँ पे वो चीज़ फ़र्क पड़ जाती है। तो मेक श्योर टू कीप इन माइंड कि आप उसको चेक कर लो हाउ यू आर गेटिंग द मनी, है ना। USD में तो ऑफकोर्स आपको FIRC मिलेगा उसका। या आई थिंक दैट इज़ ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टार्टिंग में इट इज़ हाईली सजेस्टेड दैट यू लुक फॉर अ CA, है ना। हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे CA हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर रजत अग्रवाल एज वेल इफ़ यू वांट टू गेट योर थिंग्स डन, बिकॉज उनको ऑलरेडी हमारे फील्ड का बहुत एक्सपीरियंस है। और यू कैन फाइंड सम गुड CA इन योर एरिया एज वेल। जनरली लोकल में आप खोजोगे CA तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर नॉट सुपर एक्सपीरियंस्ड विथ फ्रीलांसर्स, है ना, क्योंकि जनरली कम होते हैं हर एरिया में। तो या जो जनरली स्टार्टिंग में तो एकदम हाईली रिकमेंडेड है, गो फॉर CA, क्योंकि वो बहुत सारी तुमको सेविंग टिप्स और टैक्सेशन सब चीज़ बता देगा। तो या यू कैन कॉन्टैक्ट रजत अग्रवाल एज वेल इफ़ यू वांट टू गेट योर टैक्सेशन डन। या और हम लोग ऐसी और इंटरेस्टिंग सेशंस कर सकते हैं अबाउट सेविंग्स, कि आप टैक्स को कैसे बचा सकते हैं और। बट या टुडे सेशन वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच Rajat Agrawal sir for So guys, sharing your knowledge. yeah. So guys, like sir also provides consultancy call. So if you anybody would like to take that, so and he also has a YouTube channel where he has provided some very useful, helpful content. So this like session has been recorded. So along with this recording, we're gonna share sir's like link to where you can go and book the call, and his YouTube channel also. And then you guys can go ahead and like make use of it. So sir, like thank you very much for giving us your time from this Flow community and sharing this knowledge with all of us. And it was a great session. So, Yeah, thank you so much, Thanks guys. Harshit. That's all. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you everyone for joining Thank you, also. everyone. Yep.